and we move to the next session of the evening. And the topic is going to be Inside India's Content Creator Ecosystem, a vibrant story unfolding. And sessioning this is going to be Namita Sachdev, show host and content creator as well as entertainment journalist. The panelists for the same include Deepesh Sumitra Jagdish, actor, writer and director TVF, Harish Perinti, actor and writer TVF, as well as Shivankit Singh Parihar, actor and writer TVF. If I can please request Namita to join us on stage with the panelists. Thank you. So hi everyone. How are you, all of you? Yeah, all good. You're all set for this discussion? Yeah. Yes. Okay. So, starting with you, Shivankit, as an actor and writer, pehle to I would like to talk about TVF. When it comes to OTT platform, I think TVF, I'm sure TVF is a top player when it comes to relatability of content, the connectivity of content. How do you see more and more people coming in and then they want to work for TVF these days? You have also done one new project with TVF, so congratulations for that, first of all. And I would like you to elaborate your character and how did you get into it? How did you get a chance to work with TVF firstly? Yeah, so thank you so much first of all, for inviting me here. So I started my journey with TV, writing TV actually. So I came to Bombay as an actor. लेकिन जब यहाँ के देखा कि एक्टर 30 दिन में सिर्फ 2 दिन बिजी है, बाकी 28 दिन वो कॉफ़ी पी रहा है कॉफ़ी शॉप्स में बैठ के, तो मुझे लगा यार मैं यहाँ कॉफ़ी पीने तो नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं घर पे अच्छी कॉफ़ी बना ही लेता हूँ. तभी ये रीज़न भी है कि बॉम्बे में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी हाउसेस भी हैं. हाँ, क्योंकि कॉफ़ी शॉप्स में काफ़ी फिल्में बन रही होती हैं, वहीं रिलीज़ हो रही होती हैं, तो मुझे लगा यार बाकी दिन एक्टर क्या करेगा. तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो लिखता था ही मैं, छोटे छोटे नाटक लिख लिए, स्किट्स लिख लिए, तो राइटिंग का फ्लेयर था. तो फिर यहाँ आके जब रियलाइज़ हुआ कि इस शहर में एज एन एक्टर, मैं तो जो भी नए एक्टर आते हैं वो पूछते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि आप एक्टर बनने आए हैं तो आप साइड में ही, प्रोफेशनली मत करिए, ज़रूरी नहीं है, बट साइड में ही एडिटिंग सीख लीजिए, कैमरा सीख लीजिए, डायरेक्शन सीख लीजिए, म्यूज़िक सीख लीजिए. You have to be multitasking. Yes, especially when आप जब इस शहर में नया नया आते हैं, क्योंकि ये शहर नया नया जब होता है तो एक्टर को खाने की कोशिश करता है. तो अगर आपने ये सारे स्किल डेवलप कर लिए ना अपना साइड में, जब आपके पास वक्त है तो शहर आपको खा नहीं पाएगा. तो ये मैंने किया, और जब राइटिंग फ्लेयर आ गया, टीवी लिखा, टीवी लिख के सर्वाइव किया. उसके बाद 2002 में जब इंटरनेट रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त काफ़ी प्लेयर्स आए, मतलब काफ़ी क्या, 2 ही प्लेयर थे उस वक्त, TVF और AIB. तो मैंने TVF के साथ ज्वाइन किया और मुझे लगा कि हाँ फाइनली कोई जिस तरह का मैं कंटेंट करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ उस तरह के क्रिएटर्स आ चुके हैं इस देश में. सो बस उसके बाद जर्नी है कि ज्वाइन किया TVF, और अब 7 साल हो गए. तो अभी अब शोज़ लिख रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, सारा जो कुछ ही बनाया आज तक TVF नहीं बनाया. सो दिस इज़ द थिंग. Good thing that you mentioned that. Well, Harish, if I talk about you, you are also an actor and writer. मतलब मैं एक्टिंग वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूँ या राइटिंग वाले? राइटिंग. अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी कह दिए, कुछ मत पूछ लेना, एक्टिंग के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, है ना. मतलब यू आर फीलिंग शाय? You are a shy person? No, actually I'm not an actor. I'm I know. So when it comes to writing, tell us your process of writing. And when we talk about especially TVF, we have seen that more relatable content is coming in. है ना? Every project, if we talk about your project, is like Hostel Days, है ना, that you have written. So how did you, like, what do you think when you write your story, or what is your process of writing any series, any project? So basically लिखने के पहले at TVF mostly हम लोग एक jamming session रखते हैं जहाँ पे we discuss ideas, and the main aim is कि सब तक पहुँचे. Relatability is the first priority, and jokes and dialogues and everything is secondary. Maximum audience तक पहुँचना चाहिए, and primary aim वही रहता है. तो वो जो jamming session होता है उसमें जो ideas discuss होते हैं, जो reject भी होते हैं और जो accept होते हैं finally, I think that process changes the game altogether. And Deepesh, since you are there with TVF for such a long time, I would ask you that how have been your experience working with them so far? Yeah, it was great actually, and हम अब लगातार कर ही रहे हैं कंटेंट. और मतलब TVF एक्चुअली जैसे शिवांकित ने बताया भी कि TVF वो जगह है जहाँ पे मतलब आपको एक तो ऐसा लगा कि हमारे जैसे लोग हैं, जिस तरह की कहानियाँ शायद हमारे दिमागों में चलती हैं, जिस तरह की ज़िंदगियाँ शायद हमने जी हैं, तो उस तरह के लोग थे
तो जैसे ही आप उनका कोई भी कंटेंट देखते हो तो आप कनेक्ट फील करते हो, और यही शायद ऑडियंस को भी फील होता है। तो जो टीवीएफ में कंटेंट क्रिएटर नहीं है तो फिर वो ऑडियंस है, तो कनेक्ट दोनों लोगों को ही करता है। तो यही एक्सपीरियंस रहा है, और अपनी तरह की कहानियाँ टीवीएफ में कहने का मौका मिलता है, लोगों को समझ में आती है कि जिस तरह की कहानियाँ हम कहने चाहते हैं, जिस तरह के अलग अलग आइडियाज़ डिस्कस किए जाते हैं। एस्पिरेंट्स में स्पेशली हमने देखा भी वो। यस यस यस। तो बहुत तरह के मतलब जो जिंदगियां हमने जी हैं, और बहुत तरह के लोग टीवीएफ में हैं, तो वही कहानी हम कहने की कोशिश करते हैं, इसलिए शायद लोगों से कनेक्ट भी करती है। तो यही एक्सपीरियंस रहा है, कमाल है। शिवांकित, आजकल हम देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। लाइक इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू गेट मोर ऑफ वर्क। हाउ डू यू सी दैट एज एन एक्टर? इट्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जैसे जब मैं 2002 में क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट परस्यू नहीं किया ये सोच के कि इंडिया में थोड़ी सेलेक्ट हो जाएंगे यार, 11 की टीम में तो कैसे ही आएंगे। तो वैसे ही ना, आज से बहुत सालों पहले OTT के आने के पहले एक्टर भी यही सोचता था कि यार मुझे फिल्म थोड़ी मिल जाएगी, चलो सीरियल कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, चलो कुछ छोटा काम कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। बट ये OTT हमारा IPL है, अगर आप ऐसा देखा जाए तो एक्टर्स का IPL है। हालांकि हर कोई इंडिया शायद नहीं खेल पाए, लेकिन IPL में परफॉर्म करके लोग अपना जो कला का प्रदर्शन है वो दिखा पा रहे हैं। हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जो टैलेंट शायद नहीं दिख पाता इंडिया टीम में, पहुंच नहीं पाता कभी, वो इस OTT के ज़रिए दिख रहा है। और जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इतनी बातें करते हैं दुनिया भर में, मोस्टली शहर में नेपोटिज्म की बात हो रही होती है, टैलेंट की बात हो रही होती है। और मैं तो हर एक्टर को यही कहता हूँ यार कि नेपोटिज्म पैरेलल वर्ल्ड में चलता रहेगा, और आपका टैलेंट और आपका जो करियर है, अगर आप आउटसाइडर हैं, वो पैरेलल वर्ल्ड में चलता रहेगा। सो मुझे तो लगता है कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो वो जो लाइन जो है ना नेपोटिज्म और आउटसाइडर की, वो कभी क्रॉस नहीं होती है। हमने तो कभी नहीं फील किया कि वो क्रॉस हो रही है। आप अपनी जगह बना लोगे तो नेपोटिज्म की जो लाइन है आपको कभी क्रॉस करेगी ही नहीं। बट आई हैव वन पॉइंट टू से हियर इज दैट आपने बहुत अच्छी बात कही कि नेपोटिज्म और आउटसाइडर वाला फील नहीं आता, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द OTT हैज कम इन दी, है ना? वो पैरेलल लाइन जो बनी है ना, वो OTT की वजह से बनी है। पैरेलली एवरीबॉडी इज वर्किंग हु इज एन आउटसाइडर। अब वो घर पे बैठ के टेंशन नहीं ले रहा होता है कि यार मेरा नंबर नेपोटिज्म की वजह से कहीं कट ना जाए, क्योंकि हमको ये टेंशन कभी नहीं हुई। हाँ, तो वाली बात है। आई थिंक बहुत कमेंडेबल है ये। लोग OTT ने लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, म्यूजिशियंस को, सबको कॉन्फिडेंस दिया है। एंड इवन हर दूसरा इंसान अब आज बॉम्बे आ सकता है ना, ये कहकर कि हाँ मैं जा रहा हूँ एक्टर बनने के लिए। कई लोग तो नहीं भी आ रहे हैं, कई लोग तो अपने शहरों से रह के ही काम कर रहे हैं। मैं कितने एक्टर्स को जानता हूँ जो दिल्ली में ही रहते हैं, अपना ऑडिशन भेजते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको अगर शूट हो रहा है तो उनको मुंबई बुलाया जाता है, वो होटल में रुकते हैं, शूटिंग करते हैं, वापस दिल्ली चले जाते हैं। यही भोपाल के लड़के भी कर रहे हैं, यही सब जगह के लोग कर रहे हैं। तो आजकल तो लोग आ भी नहीं रहे हैं यहाँ रहने। इवन बिल्कुल सही, आपने सही अच्छी बात कही। इनफैक्ट जो व्लॉगर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो घरों से बैठ के काम करते हैं। दे आर जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर देमसेल्व्स। और कोरोना ने आई थिंक सिखा भी दिया कि घर से बैठ के काम हो सकता है इजीली। इवन हमारा भी एक चैनल है द टाइमलाइनर्स, वो दिल्ली से ही काम करता है। मतलब बहुत टीम से कनेक्शंस होते रहते, बातें होती रहती, पर पूरा बेस वहाँ पर है, लोग वहाँ के हैं, और वहीं की लोकेशंस पे शूट होता है। तो ये बहुत पॉसिबल है बाहर करना। अनलाइक पहले जब ऐसा नहीं हुआ करता था, और लाइक ऐसा होता था कि अगर इफ यू आर वर्किंग इन बॉम्बे यू हैव टू स्टे इन बॉम्बे। यस यस, अब ऐसा नहीं है, बदल रहा है आने वाले वक्त में, क्योंकि अब आप देखेंगे कि भोपाल में, यूपी में हर जगह फिल्म शूट्स हो रहे हैं और फिल्म सिटीज़ बन रही हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर हो जाएगा तो आई थिंक एक्टर अपनी फिल्म सिटी में काम कर रहा होगा, वो दिल्ली में काम कर रहा होगा, भोपाल में काम कर रहा होगा, मुंबई नहीं आएगा। Absolutely. As a writer, if I ask you, Harish, there is no foundation on digital platform, if I talk about, or the OTT platform. जो पहले टेलीविजन में या अभी भी होता है वहाँ पे कि एक ड्यूरेशन है 23 मिनट्स का, फिल्म इज लाइक 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जाना ही जाना है. So how much flexibility or creativity you can add on if you don't have a foundation of duration to create your content or to write a story? I think the duration of the content इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, है ना? तो अगर आप उस ऑडियंस के लिए बना रहे हो जो ऑफिस से घर जाते वक्त फ़ोन चला रहे हैं, तो आप रील्स बनाओ, आप यूट्यूब स्केचेस बनाओ, शॉर्ट फिल्म्स बनाओ, जो वो कंज्यूम करके उन्हें अच्छा लगे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. बट आप अगर उस ऑडियंस के लिए बना रहे हो जो डिनर के बाद सोने तक का जो टाइम है उसको खर्च करना चाहती है, तो आप एपिसोड्स बनाओ, आप शोज़ बनाओ. तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर एंड योर इंटेंट कि आप कौन से कंज्यूमर तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई फील. उसका एक उदाहरण है,
हमें ये कहा जाता, दीपेश और बताएंगे, मैं अपने शो का बता देता हूँ, उसके बाद वो एस्पिरेंट का बताएंगे। हमारा एक शो रिलीज हुआ है सिक्सर, जिसका फिनाले जो है वो 75 मिनट का है। उस 75 मिनट के फिनाले में अमेजॉन मिनी टीवी ने ना बोला हमें कि छोटा कर दो, ना हमें टीवीएफ ने बोला छोटा कर दो, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप 5 एपिसोड देख के आए हो, छठा एपिसोड अगर 75 मिनट का है और वो डिजर्व करता है 75 मिनट की लेंथ, क्योंकि कहानी आपको ख़त्म करनी है, तो वो जाएगा। और वो 75 मिनट लोग देख रहे हैं, और लोग देख के ये भी कह रहे हैं कि हम कहीं बोर नहीं हुए। तो एस्पिरेंट में भी आई थिंक हम लोग को कहा जा रहा था कि यूट्यूब पे रिलीज कर रहे हो, और फिनाले कुछ 50-60 मिनट का था। ये दीपेश एक बहुत बताएंगे बड़ा इसको। पॉइंट है। यस यस। उस पर एलैबोरेट कर दीजिए, बता दीजिए आप। हाँ नहीं बिल्कुल, मतलब वही है कि लोगों को कंटेंट चाहिए। अगर लोगों से कनेक्ट कर रहा है, लोगों को मज़ा आ रहा है देखने के लिए, तो मुझे वही कोई बाउंडेशन नहीं है। हम तो बहुत हर तरह के कंटेंट बनाते हैं। हमने जैसे बताया कि 75 मिनट का है, हमने तो 2-2, 3-3 मिनट के स्केचेस बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं। टीवी तो सब कुछ बनाता है, तो आई थिंक हर चीज़ की ऑडियंस है और लोग देखना चाहती है डेफिनेटली। एब्सोल्युटली। और एज अ क्रिएटर अगर मैं बात करूं दीपेश, तो कितना फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है ओटीटी पर एक प्रोजेक्ट बनाने में, और इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म? मुझे लगता है कि बहुत तरह के आइडियाज़ आप कह सकते हो। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे कि बाहर प्रोडक्शन हाउसेज हैं, और क्योंकि आपको उन प्रोडक्शन हाउसेज के थ्रू पहले जाना पड़ता था, और कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, तो हो सकता है उनको खास तरह के कंटेंट पसंद हो, खास तरह की फिल्में पसंद हो। जैसे कि कई बार बहुत, जैसे कि हम पहले कहा करते थे फॉर्मूला फिल्म्स, तो क्योंकि वो शायद पैसा जल्दी बना लेती हैं या चलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लोगों में ज़्यादा होती है। तो लेकिन जैसे कि फिर पैरेलल सिनेमा भी जैसे खड़ा हुआ, तो वो भी एक अलग धारा थी। अभी एक ही जगह पे हर तरह की कहानी आप देख सकते हो। ऑडियंस डिसाइड कर लेती है कि आपको क्या देखना है, बट ओटीटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी तरह की कहानियाँ कह सकते हो। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग भी आ गए हैं कि जो हमें सपोर्ट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को ओटीटीज़ में, कि जो अलग अलग तरह की कहानी, क्योंकि एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतना अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, ओटीटीज़ के लिए अच्छा है, ऑडियंस के लिए अच्छा है। तो ऐसे ही उनके बनाने वालों की जो अलग अलग कहानियाँ लेकर के आ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है, उनको मौके मिल रहे हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, सबके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अच्छा, टू बोथ ऑफ यू आई हैव वन क्वेश्चन। एनी डिफरेंस डज दैट मेक, स्टार्टिंग विद यू हरीश? कोई ऐसा डिफरेंस होता है उसमें? मतलब मैं बात कर रही थी, अंग्रेजी में बोल रही थी, तो अंग्रेजी में ही बोल देती हूँ, वो सवाल ज़्यादा ईजी है बात करना उसमें। एनी डिफरेंस डज दैट मेक व्हेन यू आर राइटिंग योर ओन स्टोरी, और यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ स्टोरी? It definitely helps if it's your own है ना? story, because आप एक विजन लेके चले हो, एंड उसमें आप इधर भी जा रहे हो तो आपको पता है कि कितना उधर जाना है, मेन ट्रैक लूज करके कितना साइड जाना है। किसी और का प्रोजेक्ट होता है तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ नहीं होती, बट देर आर बाउंड्रीज, बिकॉज अगर वो उसका विजन है, यू आर बोरोइंग अ विजन एंड यू कांट गो अस्ट्रे। अपने में यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। तो आई थिंक बोरोड विजन में मेहनत ज़्यादा है, अच्छा। क्योंकि आप वो लिख रहे हैं जो आपने शायद जिया नहीं है, हाँ। और उसके लिए आपको काफ़ी फिर रिसर्च करनी होती है, आपको एक्स्ट्रा काम करना होता है, पढ़ना पड़ता है ज़्यादा। वैसी कहानी जो आपकी खुद की है, उसमें मेहनत उसमें भी है, लेकिन बोरोड विजन से कम मेहनत है, क्योंकि आपने जिया हुआ है, एक पूरा एक सदी जी हुई है उस कहानी के साथ। तो शायद आप जानते हो उसकी कहानी की बारीकियाँ जानते हो, तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहता है। तो आई थिंक ये, और हम तीनों एक्टर भी हैं, और कई बार हम तीनों ने अपनी ही लिखी चीज़ों में एक्टिंग की है, तो एक्टिंग तो आसान हो जाती है अगर आप खुद राइटर हैं तो। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ। वेरी नाइस। लेकिन तब डायरेक्टर तो अलग है ना, तो नहीं, उसकी भी तो सुननी पड़ती आपको होगी ना? कैरेक्टर पता है अपना। हाँ तो आई थिंक टीवीएफ में अच्छी बात ये है कि टीवीएफ के डायरेक्टर राइटर मोस्टली सेम पेज पे रहते हैं। हाँ, तो that's कहीं the वो best डिफरेंस part. नहीं आता है कि अरे मैंने सोचा ऐसा है, तुम बना ऐसा रहे हो। 99% टाइम वी आर ऑन द सेम पेज। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब आई नाउ फील लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ टीवीएफ, बिकॉज ऐसे स्टेजेस में मैं टीवीएफ की टीम्स को काफ़ी इंटरव्यू कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है मोर लाइक अ फैमिली। बट जो लोग काम करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी एज इनसाइडर्स, आई एम एन आउटसाइडर ऑल्दो, बट एक फैमिली जैसा फील होता होगा, बिकॉज सारे लोग बहुत रिलेटेबल लगते हैं मुझे यहाँ पे। ऐसा लगता है आपको सपोर्ट करते होंगे, या दैट क्रिएटिव फ्रीडम और लिबर्टी दैट यू वांट व्हाइल मेकिंग योर प्रोजेक्ट। Only that's the reason why it has been possible for you guys to write a story and act in the same. What do you say, all of you? यस यस, मतलब एक वो भी है कि क्योंकि हम एज अ टीम काम करते हैं, तो आपको
चेक भी मिलता रहता है कि जैसे कि हमारे फीडबैक वाला एक बहुत पैसों वाला चेक, अच्छा ओके ठीक टिक है चेक टिक चेक समझ गई मैं, समझ गई तो रियलिटी चेक रियलिटी तो मतलब इसीलिए वो पॉसिबल भी होता है कि हम इतने सारे आइडियाज आते रहते हैं, एक फैमिली की तरह है तो डर नहीं लगता शेयर करने में। सब खड़े हैं कभी कॉफी पीते हुए, चाय पीते हुए, तो आइडियाज बाउंस करते रहते हैं और उसी तरीके से फिर दूसरे फीडबैक्स भी आते हैं और वो वही बात करते करते क्या है कि और सब लोगों की फ्रिक्वेंसी सेम है, सब लोगों को कंटेंट चमकता है। इसी तरीके से फिर क्या है कि फिर वो टीम बन जाती है, टीम बनते हुए फिर आप, क्योंकि टीवीएफ में सब कोई एक्टिंग करते हैं, मतलब कोई वैसे एक्टर नहीं है, मतलब टीवीएफ कभी एक्टर को मतलब इन हाउस एक्टर नहीं होता टीवीएफ में कभी, बट सब कर लेते हैं क्योंकि वही है कि सब आइडियाज इतने शेयर करते हैं, वो फीलिंग इतना शेयर करते हैं तो सबको चमक जाता है कि अच्छा ये इस तरह की ये बात उस दिन कह रहा था हमको, तो इस तरह कोई कैरेक्टर होगा। तो यही फायदा है कि हम टीम की तरह काम करते हैं तो सब सेम पेज पे आ जाते हैं। ऑल्सो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीडबैक सेशन होता है, तो एस्पिरेंट्स पे मैं फीडबैक दूंगा, वो हॉस्टल डेज पे देंगे, हम सिक्सर पे देंगे, Okay. एंड बहुत ही For different shows कोलैबोरेटिव also? यस All right. एंड इट्स अ होल टीम, तो दैट एक्चुअली हेल्प्स बिकॉज फीडबैक देते वक्त तुम्हें जितना कॉन्फिडेंस है उतना ही लेते वक्त भी होता है, तो इट्स वेरी एक्सेप्टिव। उससे एक फ़ायदा और होता है, मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि अब मेरी कोई कहानी है, अब वो मुझे समझ में आती है, मैं उससे ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ, मैं उसे फील कर रहा हूँ। जब आप उसको सुनाते हैं सब लोगों के साथ, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, अलग अलग पढ़ाई की है, तो वो सुना के समझ में आता है कितना रिलेट कर रहा है। एक इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी फैमिली होने का फ़ायदा ये भी है कि हमें ऑडियंस के अलग अलग पर्सपेक्टिव समझ में आते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब अपने पर्सपेक्टिव से उस कहानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो उस फीडबैक से ये भी समझ में आता है कि यार शायद इस तरह की ऑडियंस को, मान लो जैसे कि हम एस्पिरेंट बना रहे हैं, कोई इंजीनियर लड़का है या कोई कॉमर्स का लड़का, कोई दूसरा कोई लड़का इंजीनियरिंग की कोई कहानी बना रहे हैं, कोई आर्ट का बंदा, उसको चमक नहीं रही है कहानी, उसको समझ नहीं आ रही है, तो हमको ये यार इसको थोड़ा आसान करना पड़ेगा ताकि उनके लिए भी वो बनाई जा सके। तो इसका फ़ायदा ये भी होता है। ओके ऑल्सो इसका जो एंड प्रोसेस होता है, ये तो स्क्रिप्ट की बात होगी, इवन जब शो तैयार होके बन के तैयार होता है तो एक स्क्रीनिंग होती है। तो कई जगह आई थिंक मुझे लगता है कि कल्चर में अगर ये नहीं है ना आपके कि आप स्क्रीनिंग में सिर्फ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और 3-4 जो बिजनेस वाले हैं वो बैठ के देखते हैं, वो बोलते हैं ये सही है, तो शायद वो लॉस्ट इन ट्रांजिशन कहीं हो जाता है, आगे जाके वो कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सिर्फ 5 लोग का फीडबैक गया है। हमारे यहाँ 100-200 लोग का फीडबैक जाता है। हर फीडबैक ज़रूरी नहीं कि हम लोग इंकॉपरेट करें, बट 200 लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलतियाँ बता देते हैं हमें, क्योंकि Very nice. और उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद क्रिएटिवली बिल्कुल, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है जिसको जो शायद शोज़ भी देखता नहीं होगा, बट वो जब हमारे शो देखता है तो उसको क्या लगता है, उसको समझ में आया है कि नहीं, हम उससे भी पूछते हैं। तो आई थिंक इसलिए आई थिंक टीवीएफ के कल्चर में है कि 300 लोग को बैठ के दिखाओ जो शायद क्रिएटिवली उतने स्ट्रांग नहीं है, वो सिर्फ एज अ ऑडियंस देखते हैं जो थिएटर में जाती है पैसा देके, तो वो भी फीडबैक देती है, तो हमें समझ में आता है कि यार वो ऑडियंस जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता है क्रिएशन, वो कैसे रिएक्ट करेगी जो पैसा देके आती है थिएटर में। मोस्टली ऑडियंस इंडिया में तो ऐसी है ना, उनको तो एंटरटेनमेंट चाहिए पैसा देके, तो वो भी एक लिटमस टेस्ट कहते हैं उसको, हम लोग करते रहते हैं। बट माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ क्रिटिकल आर यू ऑल फॉर योर ओन वर्क? हम लोग खुद के बहुत काम के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं, जैसे अभी मैं नीचे जाऊंगी तो मुझे लगा यार ये और पूछ लेती। यही अच्छी बात है हमारे टीवीएफ में, हम लोग वी प्रेज इन पब्लिक एंड वी क्रिटिसाइज पर्सनली। आई थिंक ये रूल ही होना चाहिए कि आपको किसी को भी क्रिटिसाइज करना है उसको पर्सनली बुला के करिए, पब्लिकली सिर्फ प्रेज होना चाहिए इंसान। तो हम लोग पर्सनली तो क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को काफी। अच्छा, हम personally काफी एक दूसरे को all तीनों ही काफी करते हैं एक दूसरे है ना? All 3 of us have at one point fought with each other over content. एको हो रहा है आवाज। All 3 of us have actually fought with each other because of content. अच्छा, But personally, फिर अगले दिन ठीक हो जाता है। सबके सामने नहीं लड़ना है। वो रूल है, वो पता है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि हम एक ही पर्पस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमें कहानी कहनी है और बेस्ट तरीके से कहनी है। तो अब उसमें कई बार डिफरेंसेस हो जाते हैं, उसको लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है, उसको लगता है ये ज़्यादा बेटर है, तो कई बार बहस होती है, बहुत सारी चीज़ें, उस दिन का काम अटक जाता है, फिर हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। ठीक है, एक बार हमारी इतनी बड़ी टीम है, ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों आइडिया सुनाते हैं, तो उसमें हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा ज़्यादा वर्क कर रहा है, और फिर हमको पता है कि हमको एक्सेप्ट करना है, और हम वो नेचुरल है हमारे लिए, क्योंकि पता है यार हाँ, क्योंकि हमको खुद भी समझ में आ जाता है यार हाँ यार एक्चुअली शायद ये ज़्यादा सही कह रहा है। और फिर जो हमारी तरफ होता है उसको हम रात को पार्टी दे देते हैं बिना उस इंसान को बताए। अच्छा, okay, ये बढ़िया, ये बेस्ट है ना? अच्छी बात है। वेल, कमिंग बैक टू कंटेंट क्रिएशन, फॉर व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, कि हमने देखा ना पैंडेमिक में सबने कंटेंट क्रिएट किया। इफ आई लाइक सिंगिंग,
इवन इफ आई एम नॉट अ गुड सिंगर, तो मैंने वो सिंगिंग स्टार्ट किया. सोशल मीडिया पे हमने देखा कितने सारे व्लॉगर्स नए नए आ गए, इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए, और सबने अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को फॉलो किया. सो हाउ डू यू सी दैट, ऑल ऑफ यू? मतलब TVF ने भी हमने देखा काफ़ी, मतलब दे हैव टेकन अ स्टेप अहेड इन द पैंडमिक ऑल्सो. दे हैव कम अप विद सो मेनी रिलेटेबल सीरीज. सो व्हाट डू यू हैव टू से, स्टार्टिंग विद यू दीपेश? कंटेंट क्रिएटर को डेफिनेटली मतलब वही है कि मौका बहुत मिला है. मतलब पहले क्या था कि एक ही जगह थी शायद मुंबई, जहां आप आते थे और आपको कुछ करना है तो आप आते हो, और वो बहुत गट्स लगते हैं मुंबई पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे किसी के कमर्शियल प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, कई बार ये भी नहीं पता होता कि हम वो कर सकते नहीं कर सकते हैं, बस अंदर से फील हो रहा होता है. तो बहुत बार कई डर भी रहता है कि करेक्ट एक्सपेंसिव प्लेस है, कैसे करोगे यहाँ पे बिल्कुल आके? बिल्कुल. तो OTTs के आने से, जिसमें शायद हम YouTube को भी जोड़ के देखते हैं, तो मतलब लोगों को अपने घर बैठे वो अपॉर्चुनिटीज मिल गई कि अपने आप को टेस्ट कर लें. एंड दैट सेल्फ ऑडिशन वाला थिंग भी यस यस. तो वो टेस्ट करके समझ में आ जाता है, और वो YouTube पे आप डाल सकते हो या किसी OTT पे आप पिच कर सकते हो. शॉर्ट्स फिल्में भी आजकल तो आने लगी हैं, तो आप कितना कनेक्ट करो लोगों के साथ वो आपको समझ में आ जाता है. तो ये आसान हो गया है लोगों के लिए कि अपना काम, अपनी कहानियाँ, छोटे छोटे शहरों की कहानियाँ, छोटे छोटे कस्बों की कहानियाँ आप दूसरों तक पहुँचा सकते हो. तो मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ हुई है. Harish, if I come to you with the same question, but ऑडियंस के लिए एज एन, इफ यू सी द ऑडियंस, कितना डिफिकल्ट या कितना आसान रहता है ये एक्सेप्ट कर पाना कि एवरीवन इज अ स्टार? मतलब अभी पहले के टाइम की तरह नहीं है कि जैसे स्टार ही स्टार होते थे, एक पहुंच दूर तक होती थी, शायद इसीलिए उन्हें स्टार्स कहा जाता था. अभी सोशल मीडिया के आने से सब कुछ बहुत रिलेटेबल हो गया है. आई कैन टॉक टू शिवांकित, आई कैन टॉक टू यू, आई कैन टॉक टू दीपेश, है ना? नो मोर स्टार्स फॉर अस, है ना? एवरी पर्सन इज अ स्टार. व्हाट डू यू से? मतलब सही कह रहे हो आप. सिंस स्टार्स आर सो एक्सेसिबल, वो जो कर रहे हैं वो सब स्टोरी पे डालते हैं, पोस्ट पे डालते हैं, तो वो स्टारडम खत्म हो गया. बट एट द सेम टाइम उसका पॉजिटिव साइड जो मुझे लगता है कि आई कैन ऑल्सो बी दैट स्टार वेरी सून, बिकॉज खाता तो मैं भी हूँ पीता तो मैं भी हूँ. तो वो चीज़ें एक होप देती मैं भी हूँ. हाँ, टैलेंटेड मैं भी हूँ. मैं अपना टैलेंट भी डाल सकता हूँ उसी प्लेटफॉर्म पे जिस पे वो अपना टैलेंट डाल रहा है, जिस पे एक ट्रेलर आ रहा है, जिस पे एक पोस्टर आ रहा है. तो वो एक पॉजिटिव साइड भी देता है कि होपफुल ज़्यादा बनाता है ऑडियंस को, आई फील. और अभी एक चीज़ जो मैं तुमसे भी, आई मीन आपसे भी पूछना चाहूँगी शिवांकित, मैं इनफॉर्मली हो गई, देखो कि एज एन एक्टर तो इट्स डिफरेंट, है ना? एज एन एक्टर यू आर अ स्टार ऑफ कोर्स, लेकिन अभी आफ्टर द पैंडेमिक, और मैं कहूँगी सोशल मीडिया या मोर एंड मोर कंटेंट क्रिएटर्स आर कमिंग, देयर इज वन थिंग कि क्रिएटिव पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड. जैसे आज हम राइटर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं, डायरेक्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं, राइटर एंड एक्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं. सो दिस हैज बिकम चेंज्ड इन टुडेज टाइम. हाउ डू यू सी दैट एंड हाउ पॉजिटिव इज दैट चेंज फॉर यू? Definitely, it was required for this country, where writers, musicians, and DOPs and directors get the due. और डायरेक्टर्स को तो चलिए पहले ही मिलता था, क्योंकि वो तो कैप्टन ऑफ शिप होता है. और आई थिंक ये आगे और होगा, आगे और ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे राइटर ही रिप्रेजेंट करेगा चीज़ें. और स्पेशली हम तो TVF में काफ़ी पैम्पर्ड हैं एज अ राइटर. हमें तो हर जगह आगे ही रखा जाता है. और TVF हमेशा ये कहता है कि TVF में सबसे ऊपर हमेशा राइटर रहेगा, उसके बाद फिर बाकी लोग आएंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़रूरी है. इसलिए वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी प्रिविलेज दैट वी आर राइटर्स इन वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर कंपनी इन इंडिया. सो वी ऑल थ्री आर वेरी प्रिविलेज्ड to be the part of TVF. Or that's why Dipesh from last 5 years, he's from 5 years, I'm from 7 years, are working in TVF constantly with the same love, with the same passion. So last comments from you guys on OTT's future. So how do you see content creation as a future of OTT? बहुत अच्छा है. मुझे लगता है कि ये तो प्लेटफॉर्म और बड़े होने वाले हैं. मतलब अब लोगों को ज़रूरत है कंटेंट की, और मतलब ये बूम करेगा, ये ग्रो करेगा, और नई नई कहानियाँ आएंगी, लोगों को नई नई कहानियाँ देखने को मिलेंगी. फ्यूचर तो यही है. मतलब सिनेमा में अभी हो सकता है कि अच्छा कंटेंट अभी भी बन रहा है डेफिनेटली, और सिनेमा में अब शायद एक खास तरह का सिनेमा ज़्यादा आएगा. मतलब जैसे कि जिसमें थोड़ा शायद जो टेक्निकली एडवांस है, या RR जैसी फिल्में, या जो सुपर हीरोज जैसी फिल्में, क्योंकि एक खास ये फिल्में थिएटर में ही देखने में मजा आता है. वो जो स्पेशल इफेक्ट, करेक्ट, वो स्पेशल इफेक्ट्स है, वो एक्सपीरियंस आपको उसमें ज़्यादा अच्छा फील होता है. आप उसको शायद टीवी में देखेंगे तो, मोबाइल में देखेंगे शायद उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा. थिएटर की जगह अपनी बनी रहेगी उस तरह की फिल्मों के लिए. लेकिन कई बार कुछ साधारण कहानियाँ होती हैं जो शायद एक कमरे की कहानी होती है, तो उसके लिए
OTT जब लोग आराम से बैठ करके खाना खाते हुए या फिर कुछ किसी खास तरह के इमोशन में है और बस अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो वो घर पे चुपचाप बैठेंगे, अपना कंटेंट लगाएंगे और देखेंगे। घर वाली कहानी घर बैठ के ही देखना अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। या So what are your hopes if we talk about storytelling? What is the future of that? So I'll answer to the On OTT one. yes, Yeah. हाँ, हाँ. So basically blessing तो बहुत बड़ा है, especially for writers and creators. बहुत बड़ा blessing है, but it's very competitive. It's going to Yes. get very dirty. Yeah. It already is actually. And we are prepared for it. So it's survival of the fittest. जो अच्छा लिखेगा वो सर्वाइव करेगा, क्योंकि हर दिन 5 वेब सीरीज रिलीज हो रही होती हैं जिसमें से शायद वो आके चली जाती हैं। तो आई थिंक जो सर्वाइव कर पाएगा वही जो फिट है और जिसकी स्क्रिप्ट अच्छी है और जिसका डायरेक्शन और जिसका सारा कंटेंट अच्छा है। तो इट्स गोना बी टफ एंड डर्टी ऑब्वियसली, सो विच इज़ हेल्दी, ऑब्वियसली हेल्दी है। सो पीपल विल एस्पायर टू वर्क बेटर, दे विल वर्क हार्ड मोर, Better content will come बेटर out. कंटेंट बनेगा। और सबसे ज़रूरी इंडिया की कहानियाँ कही जाएँ। वो हम मानते हैं कि हिंदुस्तान, अगर आपको छुट्टी मिलती है और आपके पास पैसे हैं और आप राइटर हैं तो आप यूरोप मत जाइए, पहले हिंदुस्तान घूम लीजिए, हिंदुस्तान के गाँव को देख लीजिए, कहानियाँ देख लीजिए, हिंदुस्तान के शहरों को देख लीजिए, कहानियाँ अपने आप अच्छी हो जाएंगी। वैसे भी कहा भी जाता है इंडिया इज व्हाट वी एक्चुअली सी इन द रूरल एरियाज। तो भारत जो है वो हमारे गांव में बसता है। TVF इज व्हाट TVS इज वेरी ब्यूटिफुली शोइंग दैट एंड पोर्ट्रेइंग दैट, एंड दैट्स द वंडरफुल पार्ट ऑफ TVF मेकिंग और कमिंग आउट विद सच काइंड ऑफ स्टोरीज। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। थैंक यू सो मच। Thank you so much. So thank you so much all of you for such a wonderful conversation. I hope you liked it. Yes. Thank you so much. Thank you so I much. hope you all have liked it. Thank you. Thank you.